ایک دوسرے کے گریبان کو چاک کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ادھر دیکھیے, ادھر وہ آ رہے ہیں حضرت, آپ ادھر دیکھیے. بس میری 20 منٹ کی گفتگو ہے, آپ ملاحظہ کریں اور اطمینان و سکون کے ساتھ سنجیدگی کے ماحول میں میری تقریر سن لیں. بس خطبہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, ٹائم اس میں زیادہ خراب ہوگا, دیر لگے گی اس میں. میں ڈائریکٹ اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف بھی میں نے آپ سے پڑھوا دی ہے. اس وقت ایک گزارش ہے برائے کرم, عورتوں سے گزارش ہے, عورتیں بہت پریشان ہیں, پیچھے تھوڑا سا کرسیاں ہٹا لیں برائے کرم. عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, ان کو بٹھانے کے لیے سامنے تاٹپل بچھایا جا رہا ہے. سامنے جو بیٹھی ہیں عورتیں تھوڑا پیچھے چلی جائیں کرسیاں لے کر, مہربانی ہوگی. سید صاحب اب اور بھی اعلان کرنا ہے, کوئی نہیں کرنا ہے؟ ہاں, اب مجھے تھوڑا سا بولنے دیجئے. تو 20 منٹ کا وقت ہے میرے پاس. اس وقت خصوصاً کرناٹک میں بہت زیادہ ناٹک ہو رہا ہے. برا لگے تو آپ جانیں, کرناٹک میں اتنا ناٹک اس وقت ہو رہا ہے, اس وقت اتنا ناٹک ہو رہا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ کسی قدر ہمارا شہر پھر بھی محفوظ ہے, مگر آپ دیکھیے ہاسن کی طرف چلے جائیں یا پھر شیموگا کی طرف چلے جائیں یا پھر باقی قرب و جوار کے علاقے آپ دیکھ لیں تو ایک بہت تیزی سے پھیلنے والا فتنہ, جس فتنے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ رافضیت یا نیم رافضیت, یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ اس وقت کرناٹک میں اپنے قدم کو پسار رہا ہے. ہمارے شہر میں بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جن علاقوں میں کبھی سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا سہارا لے کر, کبھی دیگر اصحاب پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کر کے یہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ہماری قوم کے ان نوجوانوں کو کہ جو اسکول اور کالج میں پڑھنے والے ہیں یا پھر بیچارے بھٹیوں میں کام کرنے والے ہیں یا اس کے علاوہ مزدور طبقہ ہے, ان کو بڑی جلدی کے ساتھ اہل بیت کی محبت اور مولا علی کی محبت کا جال پھینک کر کے اپنے دامے فریب میں لے لیتے ہیں. غور سے سنیے گا, ابھی ایک کرنٹ فتنہ ہے شیموگا سے, ایک نالائق قسم کا شخص کہ جس کا نام انجینئر حسین قادری, شاید انجینئر اس کا نام ہے مرزا حسین قادری اس کا نام ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہر قادری وہ نہیں ہوتا کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. ہر قادری وہ نہیں ہوتا کہ جس کے نام کے آگے قادری لگا دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ صحابہ کا وفادار ہے, اولیاء کا وفادار ہے. جس کے نام کے آگے آپ قادری لگا دیکھیں تو یہ نہ سمجھے کہ وہ سرکار غوث اعظم کا وفادار ہے. ایک قادری اور ہوا کرتا تھا پڑوسی ملک میں کہ جس قادری نے بہت زیادہ فتنہ اندازی کر کے, پہلے کے بول کچھ اور تھے اس کے, لیکن جیسے جیسے میاں اس کے فالوور بڑھے اس نے مسجد میں عیسائیوں کے آنے کی اجازت دے دی, مسجدوں میں غیر مسلموں کے آنے کا کال کیا. ملت کے نوجوانوں, ہر قادری وہ نہیں ہے کہ جس کو بریلی کے امام نے کہا ہے کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے سچا قادری وہی ہے کہ جو سبھی کے تمام صحابہ کو بھی مانتا ہے. سچا قادری وہی ہے جو اہل بیت کو بھی مانتا ہے. سچا قادری وہی ہے ملت کے نوجوانوں جو دنیا کے سارے اولیاء اکرام کو مانتا ہے, نبی کونین کا کلمہ پڑھنے والوں. لیکن آج کوئی صحابہ کی محبت کا دام لے کر کے, کوئی اہل بیت کی محبت کا دام لے کر کے, کوئی اولیاء کی محبت کا دام لے کر کے ہم کو اپنے دامے فریب میں پھنساتا ہے. نبی کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, آپ کلپ دیکھیں گے اس شخص کی کہ جس کا نام مرزا حسین قادری ہے. اس ظالم نے کیا کیا نہ کہا ہو صحابہ اکرام کی شان میں,
क्या क्या गुस्ताखियां ना की हो। नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आलम यह है कि हमारे शहर के कुछ नौजवान लड़कों ने उससे व्हाट्सएप पे चैटिंग भी की और उससे फोन पे गुफ्तगू भी की। वो रिकॉर्डिंगें मेरे पास मौजूद हैं। नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, कभी वो कहता है कोई जो ये साबित कर दे कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती है, कोई जो अमीर माविया सरकार को सही साबित कर दे। नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, वो जालिम यहां तक दरीदा दहन हो गया है कि वो ये कहता है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बनु उमैया को शजरे मलूना करार दिया है। नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, खैर मना कि तू शिमोगा की धरती पे बैठा हुआ है, काश तू अगर दावनगिरा की धरती पे होता तो इन गुलामों से मुकाबला करता, इन गुलामों से मुकाबला करता। हम तुझे कभी चैन से नहीं बैठने देते। यहां जिस गली में तू जाता उस गली से तुझे आवाजें आती कि सिद्दीक अकबर भी जन्नती है, उमर फारूक आजम भी जन्नती है, उस्ताद नूरैन भी जन्नती है, मौला अली भी जन्नती है, हजरत तलहा भी जन्नती है, हजरत जुबैर भी जन्नती है। नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जिस गली से तू निकलता दीवाने ये कहते नजर आते जहां ये सहाबी जन्नती है वहां नबी का चहीता सहाबी कातिब वही अमीर मुआविया भी जन्नती है। नारे रिसालत, अजमते सहाबा और से आला हजरत, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। वक्त नहीं है मेरे पास, पैर में जंजीरें पड़ी हुई हैं 20 मिनट की। हाँ, वो जंजीरें 20 मिनट की पैर में पड़ी हुई हैं, जबान पर भी। बस गुजारिश है सुन लीजिए थोड़ी देर। अहले सुन्नत वल जमात कौन होते हैं? हमारे नौजवान यार वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने उसकी एक क्लिप सुनी, आपको सुना दूं, मैं सुना दूं, सुनना चाहते हैं? एक क्लिप मैंने उसकी सुनी और उस क्लिप में उस नालायक ने जब दलीलें दी है ना, दलीलें, तो उसने ये कहा है दलील देते हुए उसने कि भाई इस बात पर मैं खुद आपको सुना दे रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह मैं तकरीर करूंगा। सुनिए। लानत की गई है वो बनु उमैया हैं। देखिए चीज आप लोग ना जहन में रखना और रसूल खुदा की हज्जतुल विदा वाली हदीस को साइड बाई साइड रखो, कंपेयर करो। अल्लाह क्या बोला? मैं डराता हूं, मेरा डराने से उनकी इजाफा होता सरकशी में। और यहाँ पर रसूलुल्लाह क्या बोल रही? मैं अल्लाह का खौफ दिला रहा हूं मेरे अहले। सुनिए, अब थोड़ा सा आगे मैं निकाल दे रहा हूं। क्या था मौला अली अलैहिस्सलाम को वरगलाने के वास्ते कि ऐ अली इब्न अबी तालिब, आप है ना उम्मत के इमाम, रसूलुल्लाह के महबूब, आप है ना लोगों में कितना बड़ा बुग़्ज़ था अहले बैत से। और ये लोग डायरेक्टली बोलते, नए नए मुसलमान में भरोसा किसी के ऊपर इनका नहीं रहता था, तो ये लोगों का ये भी स्ट्रैटेजी रहती थी कि आपस में लड़ा देना। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम किसके हाथों के पले हुए? बोलो, रसूल खुदा के पले हुए और तमामी उम्मत के मौला उन्होंने। इसके ये शर को उन्होंने पहचान ले को, ये सब होने के बताना में तो तुलका अपनी चीजें अपने पास रख और यहाँ से जा। यही बात मौला अली अलैहिस्सलाम बोल कहां से? इसने दलील क्या दी है? दलील सुनिए। इसने दलील दी है इस वीडियो में जो मैंने ऑडियो की शक्ल में आपको सुनाया है। दलील इसने दी है कि अगर इन बातों पर कोई सबूत आपको दलील चाहिए तो यूट्यूब पे देखो, बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है और एक फिल्म बनी है, मूवी। उस फिल्म में देखिए ये जंगे जमल और सिफीन के बारे में दिखाया है। मैंने कहा जाहिल सुन, तू दलील देता है यूट्यूब की, तू दलील देता है यहूदी और नसरानियों की बनाई हुई मूवी और वीडियो की। हम मिल्लत के नौजवानों न यूट्यूब की कभी दलील देते हैं, न यहूद और नसारा की मूवियों की दलील देते हैं। हमारे लिए इमाम बुखारी हदीसों का जखीरा छोड़ के गए हैं, हमारे लिए साहिब मुस्लिम ने हदीसें छोड़ी है, हमारे लिए साहिब तिरमिजी ने हदीसें छोड़ी है। याद रख, तू यूट्यूब और मूवी की दलीलें दे दे करके लोगों को गुमराह करता है, लेकिन हम नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिक है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ला तमुस्सुन्नार रानी और अमरानी। मेरे नबी फरमाते हैं कि उसको कभी आग छू ही नहीं सकती कि जिसने मुझे देख लिया हो या मेरे देखने वालों को देख लिया हो।
वाह 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 वाह। आग नहीं छू बहुत सकती कि उम्दा, जिसने बहुत मुझे उम्दा। देख लिया हो और मेरे देखने वालों को देख लिया हो। अब एक हमारे शहर में भी बहुत बड़ा फितना ये है जी, जंगे जमल में सिफीन में अमीर माविया मौला अली के मुकाबले में आए थे, है कि नहीं बाबू भाई, है कि नहीं? जोर से बोलो, आपसे भी कहते होंगे ना। और बुखारी की एक हदीस लेकर, बुखारी की के तब्तुलहुल फियतुल बागिया, ए अम्मार बिन यासिर तुमको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, बागी गिरोह। मिल्लत के नौजवानों, अब इस हदीस के ताल्लुक से भी कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी मुकम्मल तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुन लीजिए। सन 36 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उस्मान जुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। 40 दिन तक बलवाइयों ने उस्मान जुन्नुरैन को पानी नहीं दिया। जुमे के दिन उस्मान जुन्नुरैन की शहादत हुई। मिल्लत के नौजवानों, शहीद करने वाले कौन? क्या नबी के सहाबी थे? नहीं। शहीद करने वाले कौन? क्या हजरत अली के गिरोह के लोग थे? नहीं। शहीद करने वाला सरकार मौला अली को एक यहूदियों का एजेंट था, जिसको मिल्लत के नौजवानों अब्दुल्ला इब्ने सबा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। यहूदियों ने मशवरा किया कि उमर फारूक आजम के जमाने में इस्लामी सल्तनत बहुत फैल गई है और उसके बाद 12.5 साल में उस्मान जुन्नुरैन का मिजाज बहुत अच्छा है। उस्मान जुन्नुरैन ने भी नबी के कौनैन की खिलाफत को और मिल्लत के नौजवान इस्लामी सल्तनत को दूर दूर फैला दिया है। उन लोगों ने चाल चली, मिस्र के गवर्नर अमर बिन आस को लेकर के, अमर बिन आस के खिलाफ नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों अब्दुल्ला बिन सबा ने मंसूबे के तौर पर हजरत शाहिद उस्मान जुन्नुरैन को शहीद कर दिया। और जब उस्मान जुन्नुरैन को शहीद किया है, शहीद करने के बाद वो जितने सबाई और बलवाई और खारजी थे नबी के कौनैन का कलमा पढ़वा लो, सब ने ये कहा कि मौला अली को खलीफा बनाया जाए, मौला अली को खलीफा बनाया जाए। अरे हक भी उन्हीं का था। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा भी यही है कि नबी के पहले खलीफा ये अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे खलीफा उमर फारूक आजम है, तीसरे खलीफा उस्मान जुन्नुरैन है, चौथे खलीफा सरकार मौला अली है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों राफजी कुत्ते लईन तो यहां तक कहते हैं कि जो अबू बकर को नबी का पहला खलीफा माने, ना हम उसके रब को मानते हैं ना उसके नबी को मानते हैं। ये राफजियों की बोली है और राफजियों की तरह बोली आज के नीम मौलाई बोलते हैं, राफजियों ही की तरह बोली नीम राफजी बोलते हैं। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों अहले सुन्नत का अकीदा वही है जो 1400 साल से नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वालों हमारी मस्जिदों के मिंबर से जुमे के दिन ये बताया जाता है अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्ताकीद अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मोहब्बतों के साथ याद करके जाइएगा। अब जब शहीद हो गए सरकार उस्मान जुन्नुरैन तो सरकार मौला अली मनसबे खिलाफत पे जलवाबार हुए। मनसबे खिलाफत पर सरकार मौला अली जलवाबार हुए तो हजरत तलहा और हजरत जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जुबैर बिन अवाम जानते कौन है? ये जुबैर बिन अवाम वही है जो नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिश्ते में भाई लगते हैं। ये जुबैर बिन अवाम वही है कि जब उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया जा रहा था तो इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था और हजरत मौला अली के ताल्लुक से इन्होंने वोट किया था। ये वही जुबैर बिन अवाम है और हजरत तलहा है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों हजरत तलहा और जुबैर बिन अवाम मौला अली ने इनको बुलाया, मेरी बैत कर लो, मेरी बैत कर लो नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों। तो जुबैर बिन अवाम ने कहा कि पहले आप उस्मान जुन्नुरैन का खून जो उन्होंने किया है, शहीद किया है उनको, उनके खून का किसास पहले लो, हम बाद में आपकी बैत
बैत करेंगे। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हज करने के लिए गई हुई थी। सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत शर्त के साथ इन दोनों ने भी कर ली और करने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ आ गए। उधर अमीर माविया भी यही कह रहे थे कि पहले उस्मान के खून का किसास लिया जाए। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अरे मुतालबा किसास में हजरत मौला अली भी बराबर के शरीक थे, अमीर माविया भी बराबर के शरीक थे। सरकार अमीर माविया का माना यह था कि फौरन खिलाफ फौरन उस्मान जुन्नुरैन का किसास लिया जाए, लेकिन मौला अली ये कहते हैं कि अभी नहीं, पहले सल्तनत के मामलात को ठीक कर लिया जाए और इन पे गलबा हासिल कर लिया जाए, उसके बाद अमीर माविया का किसास लिया जाएगा। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, ये दोनों सहाबी आ गए मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ। हजरत आयशा सिद्दीका से सारे मामलात को बताया तो हजरत आयशा सिद्दीका बसरा की तरफ चली गई लोगों को इकट्ठा करने के लिए। इनके साथ हजरत जुबैर बिन अवाम भी थे, इनके साथ तलहा बिन जुबैर भी थे और खुद नबी के कौनैन की प्यारी ज़ौजा के जिनके ताल्लुक से अबू बकर सिद्दीक ने कहा था अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बी बैलगे मिन दुनिया सलास अन नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इनफाकु माल अला रसूलिल्लाह व अन यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह। जिनके ताल्लुक से नबी के कौनैन के सहाबी हजरत अबू बकर कहते हैं मुझे तीन चीजें बहुत अच्छी लगती है। पहला तो नबी के चेहरे को देखना और दूसरा मेरा माल नबी के कदमों पे कुर्बान कर देना और तीसरा मेरी बेटी आयशा का मुस्तफा के निकाह में रहना अबू बकर को बहुत अच्छा लगता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। बसरा पहुंचे, नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए, तकरीर सुन लीजिएगा, टाइम नहीं है, सुनिए मोहब्बत के साथ। बसरा पहुंच गए, इन्होंने भी लोगों को इकट्ठा किया। उधर सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी खबर हो गई और जब खबर हुई तो कुछ बलवाई अब्दुल्ला इब्ने सवा के, ये रावसी नहीं बताएंगे आपको, ये यहाँ के भंग पीने वाले नहीं बताएंगे आपको, यहाँ पर ढोल तमाशे करने वाले नहीं बताएंगे आपको। अगर यहाँ कोई बताएगा तो जो सच्चा आला हजरत वाला होगा वही खोल खोल के बताएगा। हक है, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। मौला अली सरकार भी आ गए, मौला अली सरकार। अब मौला अली सरकार ने कासिद को भेजा हजरत आयशा सिद्दीका के पास। हजरत आयशा सिद्दीका और दोनों के दरमियान मामला तय हो गया। बोले ठीक है, जंग नहीं की जाएगी और हम भी अपने घर की तरफ वापस होते हैं, लेकिन ए भैया ए बाबू, खुदा के वास्ते जलसे से कुछ पैगाम कौम तक पहुंचने दो। हाँ, कुछ कौम, अच्छा मुफ्ती साहब भी तशरीफ ले आए, कुछ पैगाम कौम तक पहुंचने दो। शादी किसको बंद कराओ बाबू, जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलो या हबीब अल्लाह, और लहक के बोलो या नूर अल्लाह। तो शाम को मामला तय हो गया, हजरत अली और हजरत आयशा के दरमियान कोई जंग नहीं होगी, कोई जंग। अब जो कुछ अब्दुल्ला इब्ने सवा के गिरोह के खारजी मौला अली के लश्कर में थे और कुछ खारजी नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों अब्दुल्ला इब्ने सवा के साथी हजरत आयशा सिद्दीका के लश्कर में चले गए थे। उन्होंने ये सोचा अगर ये जंग खत्म हो गई और दोनों में सुलह हो गई तो नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों ये सोचने लगे अली हमारी गर्दनों को उतार देंगे, इसलिए कि हम ही ने उस्मान जुन्नुरैन को कत्ल और शहीद किया है। नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वालों अब इन्होंने ये सोचा इन दोनों को लड़ाया जाए, इन दोनों में झगड़ा कराया जाए। रात जब हुई है तो चंद सवाई मौला अली के लश्कर से निकल करके हजरत आयशा सिद्दीका के लश्कर पे तीरों से हमला कर देते हैं और इधर जो सवाई मौजूद थे उन्होंने ये कहा देखो अली ने हमला कर दिया है, तो इधर के सवाई भी सरकार मौला अली के लश्कर पे हमला करने लगे। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों लड़ाई की इब्तिदा न मौला अली सरकार ने की थी न हजरत आयशा सिद्दीका के साथियों ने की थी। अगर लड़ाई दोनों तरफ से की थी तो इधर से भी सवाई थे और इधर से भी सवाई थे। नबी के कौनैन का कलमा
पढ़ने वालों, सरकार मौला अली की तरफ से हजरत अम्मार बिन यासिर को शहीद कर दिया गया। और जब अम्मार बिन यासिर को शहीद किया गया तो लोग ये कहते हैं नबी ने ये कहा कि तुमको बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार बिन यासिर को हजरत आयशा सिद्दीका की तरफ से लोगों ने कत्ल किया है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आओ आओ, नबी के एक सहाबी और थे जिनका नाम जुबैर बिन अवाम था। ये वो मेरे मुस्तफा के सहाबी है कि साहिब तिरमिजी ने लिखा है कि हर किसी का जन्नत में कोई हवारी होता है, जन्नत में मेरा पड़ोसी जुबैर बिन अवाम है। यही जुबैर बिन अवाम है कि जब हजरत मौला अली के सामने इनके सर को काट के लाया गया तो नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जुबैर बिन अवाम के सर को देख करके मौला अली ने कहा कि जुबैर बिन अवाम सुन ले, जिसने भी तुमको कत्ल किया है वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अली ने इनको कहा है कि जिनको जुबैर ने कत्ल किया है वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अम्मार बिन यासिर के शहीद करने वालों को हजरत नबी के कौनैन ने कहा अम्मार तुमको बागी जमात कत्ल करेगी। अब जवाब सुनते चले जाइएगा, ना अम्मार बिन यासिर को नबी के सहाबा ने शहीद किया, ना हजरत जुबैर बिन अवाम को नबी के सहाबा ने शहीद किया। इन दोनों को शहीद करने वाले अब्दुल्ला बिन सबा के गिरोह वाले थे। पता चल गया कि मुस्तफा के सहाबी आपस में झगड़ा नहीं करते, वो तो एक दूसरे के भाई होते हैं। यही वजह है कि जब जंग सिफीन के बाद सरकार मौला अली से पूछा गया, ऐ सरकार मौला अली, हमारी तरफ से भी लोग शहीद हुए हैं, उनकी तरफ से भी लोग कत्ल हुए हैं, दोनों का मामला क्या है? नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, तो मौला अली ने कहा कतलाना व कतलाहुम फी जन्ना। मौला अली ने कहा था हमारी तरफ से जान देने वाले भी जन्नती हैं और अमीर माविया की तरफ से जान देने वाले भी जन्नती हैं। नारे तकबीर, वाले भी नारे रिसाला, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वाले भी जन्नती बहुत हैं। उम्दा, बहुत उम्दा, वाह और वाह वाह वाह। हजरत मौला अली ने कहा हमारी तरफ से जान देने वाले भी जन्नती है और हजरत अमीर माविया से की तरफ से जान देने वाले भी जन्नती हैं। और दोस्ती देखो, राम मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत देखो, मोहब्बत। जब आपस में इनके थोड़े से मामलात हुए कुछ सियासी मामलात को लेकर के, तो रूम के बादशाह ने, क्या बोलो, रूम के बादशाह ने सोचा अमीर माविया और अली आपस में इनके मामलात बिगड़ गए, चलो इस्लाम की राजधानी पे हमला कर दिया जाए। इस्लाम की राजधानी पर तो रूम का बादशाह एक बड़ा लश्कर लेकर के मिल्लत के नौजवानों इस्लाम की राजधानी पे हमला करने के लिए निकला। और जब हमला करने के लिए निकला है सरकार मौला अली के लश्कर पर, सरकार मौला अली की राजधानी पर, इस्लाम की राजधानी पर, तो रूम के बादशाह को सबसे पहले जिसने खत लिखा था उसका नाम अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर माविया था। अमीर माविया ने कहा रोम, ए रूम के कुत्ते सुन ले, ए रूम के कुत्ते सुन ले, तूने अगर इस्लाम की राजधानी पे हमला किया, याद रख मेरे और अली के दरमियान कुछ मामलात हैं, लेकिन अगर तूने इनका फायदा उठा करके मदीना शरीफ पे हमला किया तो याद रख ले अली की तरफ से सबसे पहले तलवार लेके जो तेरे सामने आएगा उसका नाम अमीर माविया होगा। उसका नाम वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या होगा? वाह 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 वाह। अमीर माविया। बस अंदर मत आइए आप लोग, अंदर आइए, राम मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सबको बाहर रखिए। वक्त नहीं है और पता नहीं मौसम भी किस वक्त बेवफाई कर जाए। बेशक बेशक। शहर के उलमा मिंबर पे जलवा बार हैं। शहर वालों, शहर वालों, हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने ये नूरी अर्ज कर रहा है, हाथ जोड़ के बचा लो अहले सुन्नत वल जमात को, बचा लो इस्लाम को और अपनी नस्लों को बचा लो, नस्लों को। अगर तुमने इन जालिमों के साथ होटलों पे चाय पीना नहीं छोड़ी, अगर तुमने इनके साथ
दावते खाना नहीं छोड़ी, अगर तुमने इनके साथ बीड़ी गुटखा सिगरेट शेयर करने नहीं छोड़ा तो याद रखो तुम तो बच सकते हो, लेकिन अपनी नस्लों को कैसे बचाओगे, अपनी नस्लों को कैसे बचाओगे। नबी ये कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, गुजारिश करना चाहता हूं, अगर माल का इख्तिलाफ हो तुम जानो, दौलत का इख्तिलाफ हो तुम जानो, अगर घर का इख्तिलाफ हो तुम जानो, अगर असबियत का इख्तिलाफ हो तो तुम जानो, लेकिन कभी सुन्नियत का इख्तिलाफ हो तो अपनी जात से किसी सुन्नी को नुकसान मत पहुंचाना। अगर सुन्नी कोई सुन्नियत का काम कर रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, या तो उसकी मदद करो, या उसकी मदद नहीं कर सकते हो तो इतना करो कि कम से कम उसकी मुखालफत मत किया करो। आज तो हम तो अपने ही गिरेबान फाड़ रहे हैं एक दूसरे के। मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती हयातुल्लाह साहब, बस 2 मिनट की गुफ्तगू और सैयद साहब अर्ज करना चाहता हूं। हम अपने गिरेबान आपस में एक दूसरे के साथ फाड़ रहे हैं, और क्या फाड़ रहे हैं सुनो, वो ढोल वाले एक स्टेज पे आ गए और नीम रावजी भी एक स्टेज पे आ गए, मगर तुम बट गए। अजहरी तुम अलग हो, कायदे मिल्लत के मानने वालों तुम अलग हो, इस्माइली तुम अलग हो, अशरफी तुम अलग हो, मिल्लत के नौजवानों कादरी तुम अलग हो। मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये तुम्हारे मशरब है, मशरब की लड़ाई छोड़ दो और एक अकीदे पे मुत्तहिद हो जाओ कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक सेट वाले साहब से मेरी गुजारिश है, माइक सेट वाले साहब से पीछे आवाज नहीं आ रही है, बराए करम वहां की आवाज बराबर कर दे। कब तक करोगे, कब तक लड़ोगे, कब तक झगड़े करोगे, क्या स्टेज शेयर करने पे सुलह कुल्लियत के फतवे लगाओगे? स्टेज शेयर करने पर अगर हल्के में इमाम के दावत हो जाए दावत, तो उसी दस्तरखान पे इमाम भी बैठा है और वो भी उसी दस्तरखान पे बैठा है जो सुलह कुल्लियत के फतवे लगा रहा है। जी उनके साथ जाओगे तो सुलह कुल्ली हो जाओगे, उनके साथ बोलोगे तो सुलह कुल्ली हो जाओगे। जानते हो सुलह कुल्ली किसको कहा जाता है? उठाओ फतावा रज़फिया, उठाओ फतावा शारे बुखारी, उठाओ फतावा मुस्तफिया, आपको पता चल जाएगा सुलह कुल्लियत की सही डिफिनेशन क्या है। हमने तो उन चीखने वालों को देखा, अजी वहां बैठ गए उनके साथ, वहां चले गए उनके साथ, लेकिन मैंने उन जिम्मेदारों को अपनी आंखों से देखा है कि जब मुक्तदी के दस्तरखान पे दावत के लिए बैठा है तो वो भी सामने बैठा है कि जिसको सुलह कुल्ली कहा जाता है, और तू भी बैठा है। अगर तेरी सच्ची रज़फियत से मोहब्बत है तो दस्तरखान को छोड़ के आ जा, याद रख छोड़ के नहीं आएगा, इसलिए कि तुझे इमामत को बचाना है, तुझे इमामत को बचाना है। अरे तुझे होगा इमामत को बचाना, हमें इमामत को बचाना नहीं है, हमें मुस्तफा के दीन को बचाना है। इमामत को बचाना नहीं है, मुस्तफा के दीन को बचाना है। ऐसी 100 इमामतें कुर्बान, उलमा तायीद करें मेरी बात की, ऐसी 100 इमामतें कुर्बान, पाए मुरा लंग नीस्त, जाए खुदा तंग नीस्त। हमारे पैर लंगड़े नहीं है, खुदा की जमीन तंग नहीं है। ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से मौका मिलता है, ये सोचा करो कि अल्लाह न जाने किस मौलवी की फजर की दुआ की वजह से तुम्हें देता है ना, ये सोचा करो। ये हाँ, अगर कोई मिल्ला वहाबी से तो यार उसका मामला अलग है, उसको छोड़ो, लेकिन सुनो, जो अहले सुन्नत वल जमात की फलाह बहबूदगी के लिए अगर ये निकालते रहे ना, अगर निकालते रहे, चलो ये भी निकल गए, ये भी निकल गए, ये भी निकल गए, ये भी निकल गए, रहा बच्चा ये भी निकल गया, क्या रहा हमारे पास? क्या रहा हमारे पास? क्या रहा? मिल्लत के नौजवानों, आलम यह है, सीने से लगाओ, सीने से। जो सुन्नी है, आला हजरत के मिशन पे काम कर रहा है, उसकी मदद करो, सीने से लगाओ। और आज गुलजारे मिल्लत की आमद से पहले, स्कूल में पढ़ने वाले कितने बच्चे हो तुम? हाथ उठा के बताओ, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप सब हो, अल्लाह आपके इम्तिहान में कामयाबी आता फरमाए।
सुनो बेटा, सुनो, गौर के साथ सुनो। हालात मुल्क के बहुत खराब हैं, बहुत खराब। गुजारिश करूंगा इन साइंस और हिंदी इंग्लिश की किताबों के साथ साथ आला हजरत की तमहीद ईमान भी पढ़ा करो। हाँ, इनके साथ साथ, अरे अगर अल्लाह तौफीक दे पढ़ना जानते हो तो मुहद्दिसे कबीर के बाबा की बहारे शरीयत भी पढ़ा करो। अगर पढ़ना जानते हो तो मुफ्ती आजम की फतावा मुस्तबिया में पढ़ा करो। अगर तुम ये पढ़ोगे तो जो झूठे नारा लगा रहे ना फतावा रज़विया को आम करेंगे, तो हम ढोल बजा के आम नहीं करेंगे, अपनी मस्जिदों से वहाबियों को भगा के आम करेंगे, वहाबियों को भगा के आम करेंगे। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह बरकतें दे। फिर कभी इंशाअल्लाह मौका होगा तो गुफ्तगू करूंगा। बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।